Good morning, dear students. We are doing lesson 7th. Let us start. Our next topic is software piracy. The piracy refers to the theft of the software through the illegal copying or the genuine program. The types of the software piracy. Firstly, it is the soft lifting. Soft lifting means purchasing a single licensed copy of the software and loading it into the several computers. After that, online uploading and the downloading. It means making the unauthorized copies of the copyright software. After that, software counterfeit. Here by mean of the counterfeit is making the copies. Software counterfeit means the duplicate or the selling the copyright software by making its copies. OEM. OEM unbundling. It means that selling the standalone software that was intended to bundle with the specific accompanying hardware hardware or the hard disk loading. It refers to the installing illegal copies of the software on the hard disk. Next one is renting. Renting, you can open the book also, and in the book it is given on the page number 207 207. Renting, it means unauthorized sharing of the software for the temporary use of the some nominal charges. The next concept is plagiarism. Plagiarism means copy the language or the thoughts of the someone other and show it's your own work. Plagiarism has become very easy with the technological advent and the web searching and the copy paste option. After that, types of the plagiarism. Direct plagiarism. It occurs with the users copy the work of the another persons and telling that authors of the word to word. Self plagiarism. It's the type of the plagiarism where the author uses his original manuscripts in more than one context. Mosaic plagiarism. These types of the plagiarism happens when the someone sentence structure uses with the synonyms. Accidental plagiarism. It happens when the user does not understand how to praise. Steps to prevent the plagiarism. The way to prevent the plagiarism is cation method. Here, what is the meaning of the cation? It means that acknowledging the original writer and the source from where the material has been taken. Next topic is digital property. The digital property is known as the digital information related to you. The digital property right. Copyright digital material, registered trademark, patent, or the digital content which are created by the author. Property right. It refers to the intellectual property right given to the person over the digital property created by him. Potential threat to the digital property right. New technology inventors have the no patent, except that sometimes competitor uses the company trademark for their own benefits.
ways to protect the digital property right, means how to protect. One is technical protection, also known as the TPS. These includes the data encryptions, means you can hide your data, except that legal protection. Digital property owners must include the digital right protection. Control sharing. Everyone should prohibit from the sharing the material related to the digital property with the anyone other. Open source philosophy. Open source philosophy allow the free access and the distribution of the software or a program. Types of software in the term of accessibilities. Firstly, closed source software. These are also called the proprietary software, and these software controlled and the modified by its creators. Free softwares. Free softwares are those software whose terms of the distribution allow the user to study, change and distribute. Open source software. Software that is the publicly accessible and the modified and shared by anyone. Here is not too much difference between the free software and the open source software. That's why it's given the difference between the open source software and the free software. I am explaining. In the open source software, it's the focus on the improvising the software, while in the free software, it is freedom to run the program for any purpose, to study or customize and distribute it to the vendor. So now I am explaining in the Hindi. स्टूडेंट्स अब ये मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ लेसन. तो सबसे पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी. सॉफ्टवेयर पायरेसी से मतलब जो है कि सॉफ्टवेयर की कॉपी करना इलीगल वे से. यदि कोई एक पर्सन सॉफ्टवेयर को चोरी करके उसकी कॉपी करता है तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है. और इसके कई प्रकार होते हैं. सबसे पहले आपका है सॉफ्ट लिफ्टिंग. इसके अंदर क्या रहता है कि सॉफ्टवेयर की एक कॉपी परचेज कर ली जाती है और इसको कई कंप्यूटरों में कॉपी किया जाता है. उसके बाद ऑनलाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग. इसके अंदर सॉफ्टवेयर की एक कॉपी को अपलोड कर दिया जाता है इंटरनेट के ऊपर और उसको कई पर्सन यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद सॉफ्टवेयर काउंटरफिट. इसमें आपके सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपीज़ की जाती हैं. OEM अनबंडलिंग. OEM अनबंडलिंग के अंदर क्या रहता है कि जैसे ड्राइवर्स आते हैं हार्डवेयर के, तो वो ड्राइवर्स जो हैं इंडिविजुअली बिना हार्डवेयर के भी सेपरेटली बेचे जाते हैं. हार्ड डिस्क लोडिंग. एक सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर लेना और उसको कई कंप्यूटरों पे यूज़ करना, ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंडर आता है. और उसके बाद आपका रेंटिंग. रेंटिंग का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर या कोई एक फाइल, जैसे कि मान लो एक मूवी है, उसको एक CD परचेज करके रेंट पे देना.
तो वो भी आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंडर में आता है। आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है पैलाग्रिज्म। पैलाग्रिज्म का मतलब होता है कि किसी और के थॉट्स या लैंग्वेज को आप कॉपी करके उसे अपना शो करें, दैट इट इज़ क्रिएटेड बाय यू, तो वो पैलाग्रिज्म कहलाता है। और इंटरनेट के आने से जैसे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल गया है, तो पैलाग्रिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग दूसरों की मैटर को कॉपी करके उसे अपना शो करते हैं। पैलाग्रिज्म के कई प्रकार भी होते हैं। पैलाग्रिज्म के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट पैलाग्रिज्म। इसके अंदर आपका जो होता है वर्ड टू वर्ड कॉपी किया जाता है, सेंटेंस को ऐसे कैसे उठा के ऐसे ही रख दिया जाता है। और सेल्फ पैलाग्रिज्म में अपना जो एक ही पर्सन जो अपना मैटर है वो उसको एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ करता है। और मोज़ेक पैलाग्रिज्म के अंदर जो सेंटेंस है उसको कहीं और कॉपी करना, लेकिन सिनोनिम्स के साथ, मीन्स सेम बात को कहना लेकिन अलग ढंग से। एक्सीडेंटल पैलाग्रिज्म, इसके अंदर जो है वो यूज़र जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कैसे यूज़ किया जाए। हैपन्स व्हेन द यूज़र डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेस। स्टेप टू प्रिवेंट द पैलाग्रिज्म, पैलाग्रिज्म को कैसे रोका जा सकता है? तो पैलाग्रिज्म को रोकने के लिए केशन मेथड का यूज़ किया जाता है। और केशन होता क्या है कि जो ओरिजिनल राइटर है उसको ये बताना चाहिए कि जो मटेरियल है यह कहाँ से लिया गया, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इससे पहले राइटर का साथ में मेंशन किया रहना चाहिए कि ये राइटर है और इसने यहाँ से डिटेल वगैरह यूज़ की। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल प्रॉपर्टी से मतलब हमारा है कि इंटरनेट के ऊपर एक पर्सन से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। तो डिजिटल प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट कहलाते हैं। और डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के अंदर क्या क्या खामियां हो सकती हैं उसके बारे में बताया गया है, थ्रेट्स बताए गए हैं। वो ये है कि डिजिटल प्रॉपर्टी राइट के अंदर एक तो जो नए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंटर आते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ को, डिजिटल प्रॉपर्टी को पेटेंट नहीं करवाते। और इसके अलावा जो कंपटीटर होते हैं वो किसी और कंपनी का ट्रेडमार्क अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा लेते हैं ताकि कंपनी की इमेज इम्प्रूव हो या सेल बढ़े। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट जो है इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? डिजिटल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए टीपीएस टेक्निकल प्रोटेक्शन सर्विस होती है। इस सर्विस के अंदर जो है मेनली डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, डाटा को हाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन यानी कि जो कानूनी सलाहकार हैं या साइबर के ऊपर कानून बनाया गया साइबर लॉ, उसको भी अप्लाई किया जा सकता है। या कंट्रोल्ड शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, जो आपको सॉफ्टवेयर है वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर भी यही रहता है, डिजिटल प्रॉपर्टी भी हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ओपन सोर्स फिलोसफी, जो सॉफ्टवेयर की एक्सेस या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है वो अगर फ्री है तो वो आपका ओपन सोर्स फिलोसफी कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन टर्म ऑफ
असेसिबिलिटी। सॉफ्टवेयर को आप असेस कर सकते हैं कौन कौन सी टर्म में। एक तो क्लोज सॉफ्टवेयर हो गया आपके। क्लोज सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले आपका, जैसा कि सॉफ्टवेयर अगर कंट्रोल किए जाते हैं या मॉडिफाई किए जाते हैं क्रिएटर के द्वारा, और कोई और पर्सन उसको ना तो मॉडिफाई कर सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, दैट आर द क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑन द अदर हैंड, फ्री सॉफ्टवेयर आर दोज which are distributed or the changed by the software owners and can be distributed free for the anyone। मीन्स अदर टर्म्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो यूज़र उसको स्टडी कर सके, चेंज कर सके और फ्री के अंदर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके। और ओपन सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके एक्सेसिबल होते हैं और मॉडिफाइड भी होते हैं। तो ओपन सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ओपन सॉफ्टवेयर के अंदर आगे डिफरेंस भी बता रखा है, तो मेनली यही डिफरेंस ये रहेगा कि जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं वो इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, जबकि फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो रीड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।